Hello, everyone, and welcome to Career Launcher. So, good afternoon. And in this class, we are going to discuss about Collegium System. So, I hope you all are aware. You must have heard this term. इतना तो I'm sure कि you must have heard the concept of Collegium, which actually, if you read newspaper, if you have seen previous year questions, अगर आप newspaper पढ़ते होगे तो आपने जरूर ये term देखा होगा. I'm 100% sure. So basically, this is actually it is a system for appointment of judges in higher judiciary, right? Appointment of judges in higher judiciary. So what exactly it is, we will discuss in detail about it. Plus, we will discuss something which are which are generally asked in exam related with judiciary. ठीक है ना? तो वो भी हम डिस्कस करा लेंगे इस क्लास में, जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वन लाइनर हो या passage based exam ho, jis tarah ka bhi ho. So the famous questions that are being asked related to this I will discuss in today's class. Yes, good afternoon Agastya, Pranshi, Odit, Safi, Nomani, good afternoon. So let us begin. With the questions, तो मैं पहले आपको कुछ questions भी दूंगा, ठीक है, and I'll discuss something the questions and all, और उसको डिटेल में जानेंगे. All the three judges case जो आपने नाम सुना होगा, the three judges case. In fact, अब तो 4 judges case भी हो गया, so now we can say कि there are 4 judges case, ठीक है. So we will discuss all those 4 judges case to understand the concept of collegium in detail. अब मैं इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ अभी. I think few days back we had seen the Hindu editorial. अगर आप the Hindu newspaper पढ़ते होगे तो the Hindu में editorial आया था 4-5 दिन पहले, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन था, और उस वक्त मैंने बोला भी था कि मैं सेपरेट क्लास ले लूंगा इसका, ठीक है. So few days back we had seen an editorial in the Hindu talking about Collegium system, so I had promised that I will have a class. So let us begin with the question. So I'll be giving you questions. If you know it, please answer me. The first question says the concept of Collegium system was for the appointment of judges in higher judiciary was innovated in first judges case, second judges case, third judges case, fourth judges case. What is the right answer to this question? Can you please tell me? Yes. I am waiting for the response from everyone. So please try to answer it. I'll be very happy. देखो, चूंकि यहाँ पे लिखा innovated in means इससे पहले ये concept नहीं था, कहने का ये मतलब है. So the answer would be B, second judges case. Yes, Safi, Nomani, you are right. Pranshi, Govil, you are right. हाँ. अब कुछ बोलेंगे सर, अभी जो current system है, current system which is working is this one. Current system of appointment is through third judges case. ठीक है. बट जो सिस्टम कॉलेजियम की बात सबसे पहले सेकेंड जजेस केस में कही गई थी. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेजियम was discussed or talked about by the Supreme Court in second judges case. Later on it was made more comprehensive, yeah, more expanded further in third judges case. So currently जो है जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं currently मतलब आज के दिन, ठीक है, today, so all the appointment in high court and Supreme Court are done through by following the third judges case, तीसरे वाले judges case, ठीक है. Although the concept of collegium innovated in second judges case, so you have to be crystal clear about it, ठीक है. Okay, now I hope you are aware of this, that there are 3 levels of judiciary in India. India follows the concept of integrated judiciary, but something कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, that this is the district level court, है ना, सबसे नीचे में जो होता है district level court. So इसको कई बार जो है subordinate judiciary भी कहते हैं, but many chief justices have said कि we should not avoid calling it as subordinate judiciary. ठीक है, तो कई सारे जजेस ने कहा तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी की जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी कहना ठीक रहेगा. इसमें सारे वो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज, चीफ जुडिशरी, लाइक सेशन जज एंड ऑल, है ना. फिर स्टेट लेवल पर होता है, वी आर हैविंग हाई कोर्ट, ठीक है, एट स्टेट लेवल. जो आप फोटो में देख रहे हो, सो दिस इज तेलंगाना हाई कोर्ट. ओके, so every state has a high court, and here is actually the Supreme Court, which is one actually, and that is in Delhi. ठीक है. So first please tell me that how many high courts are there in India. मैंने आपको बताया है कि मैं कुछ questions भी पूछते जाऊंगा, and I'll ask some questions and I'll discuss the collegium system as well. ठीक है. So how many high courts are there in India? 24, 25, 27, 29. What is the right answer? And the right answer is B. Yes, 25 is the right answer. Agastya, Safi, Priyanshi, you all are right. B is the right answer to this question. ठीक है.
एपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नाम एपेक्स कोर्ट लिखते हैं. एपेक्स मतलब सबसे टॉप पर जो होता है उसको एपेक्स कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एपेक्स कोर्ट. नाउ प्लीज टेल मी वन मोर थिंग व्हिच आई एम आस्किंग. किससे देयर आर एक्चुअली 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. ठीक है, तो हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं एंड देयर आर सम अदर जजेस, है ना. सिमिलरली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वी हैव द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनको सीजीआई लिखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोथ आर सेम थिंग. प्लस देयर आर सम अदर जजेस. सो टोटल कितने जजेस हैं इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? मींस व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? If this question is asked, then what should be your answer? Yes. Priyanshi Goyal, right. 34 is the sanction limit. 33 plus 1. At the moment, नहीं, maximum मैं पूछ रहा हूँ. So 33 plus 1 is 34. ठीक है. So basically it is the Chief Justice of India plus 33 judges. So total it is 34 judges. So total मैं पूछा था. So the answer would be 34. This is the sanctioned strength, यानी total strength. ठीक है. फिर अभी कुछ दिन पहले रिटायर भी किए थे. ठीक है, तो keeps on changing, then there is some recommendation also. तो खैर maximum strength is 34. okay, तो ये इतना बेसिक पता होना चाहिए. Now we are asking about high courts. हाँ, उसको प्यूनी जजेस कहते हैं. ग्रेट सैफी. So ये जो 33 जजेस है ना, इनको इंग्लिश में लिखते हैं प्यूनी, PUISNE. प्यूनी जजेस मतलब होता है जजेस अदर देन चीफ जस्टिस, उनको प्यूनी जजेस कहते हैं. ठीक है. यस. सिमिलरली हाई कोर्ट्स में भी डिफरेंट हाई कोर्ट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ जजेस होते हैं. वो याद नहीं रखना. यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर दैट. Fine. Let's move on to the next one. Which of the following is the oldest high court in India? Allahabad High Court, Calcutta High Court, Bombay High Court, Madras High Court. What is the right answer? Yes, Priyanshi and Safi Namani both are right. Calcutta High Court, B is the right answer to this question. And it is July 1862. ठीक है. Yes, Agastya, Safi, Priyanshi, you are right. B is the right answer to this question. This is the oldest high court in India. है ना. ये याद रखिएगा because these are asked in exam. मैंने देखा है. ठीक है. Now let's move on. Which high court has the maximum number of jurisdictions? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है. That is why I'm asking. Maximum number of jurisdiction मतलब maximum number of either state or union territory which is under its jurisdiction. Bombay High Court, Guwahati High Court, Jammu and Kashmir High Court, Punjab and Haryana High Court. What is the right answer? This is a very prominent question. Yes, Priyanshi, Agastya, Safi, you all are right. Option B, Guwahati High Court. Yes, is the right answer. Priyanshi, right. This you will find it in the state of Assam, but it has benches in other states as well. ठीक है, तो हम लोग कुछ हाई कोर्ट्स का नाम देख लेते हैं. और बिकॉज ये सब पूछा जाता है. देखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना. सबसे लार्जेस्ट हाई कोर्ट यही है. लार्जेस्ट अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट इन द सेंस कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाई कोर्ट सैंक्शन इज 160 जजेस. करंटली 119 है, 41 की सीट वैकेंट है. तो खैर ये नहीं याद रखना है. ठीक है. लार्जेस्ट हाई कोर्ट याद रखना है इज इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इट हैज 2 बेंचेस. वन इज इन प्रयागराज, इलाहाबाद एंड लखनऊ. सिमिलरली आंध्र प्रदेश सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट यही है, पता है, 2019 से बना है ना. सो अमरावती में यू विल फाइंड. ठीक है. देन बॉम्बे हाई कोर्ट कवर्स गोवा. देन दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, एक पूरा एक यूनियन टेरिटरी. दिस इज वन यूनियन टेरिटरी. एंड देन महाराष्ट्र. सो 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को कवर करता है. एंड इट हैज बेंचेस इन औरंगाबाद, नागपुर एंड पनाजी आल्सो, मुंबई के अलावा, अदर देन मुंबई. देन द ओल्डेस्ट इज कलकत्ता हाई कोर्ट. इट कवर्स वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार. ये भी कवर करते हैं. सो ये सब पूछते हैं, मैंने देखा है एग्जाम्स में, खास की जिसमें मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है, दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन. ठीक है. फिर छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. बिलासपुर में, नॉट इन कैपिटल. ठीक है, कैपिटल में नहीं. दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली, है ना. गुवाहाटी हाई कोर्ट का मैक्सिमम बेंचेस देखोगे, अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड, 4 स्टेट्स. एंड दैट इज व्हाई इसका जो बेंच है वो गुवाहाटी में, ऐजवाल, ईटानगर, कोहिमा, बिकॉज 4 स्टेट्स, तो 4 सिटीज में भी, उसके कैपिटल्स में. ठीक है. सो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जुरिस्डिक्शन यहाँ है. ठीक है. देन गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात, हिमाचल, शिमला. इट्स सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. जम्मू एंड कश्मीर. ना, जम्मू एंड कश्मीर जो है, पहले हम लोग बोलते थे कि देयर इज ओनली वन हाई कोर्ट व्हिच हैज इट्स ओन, वन यूनियन टेरिटरी व्हिच हैज इट्स ओन हाई कोर्ट. सो दिल्ली आंसर होता था. नाउ आई होप यू आर अवेयर, जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो यूनियन टेरिटरी. सो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी होकर के इसका अपना हाई कोर्ट है, व्हिच कवर्स जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. 2 यूनियन टेरिटरी को कवर करता है. ठीक है. फिर ये हो गया झारखंड, कर्नाटक, केरला. केरला का याद रखिएगा, केरला एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं.
ठीक है। सिमिलरली मध्य प्रदेश का कैपिटल में नहीं है, जबलपुर में हाई कोर्ट। ठीक है। सो कई सारी जगह जैसे मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई, मणिपुर, इम्फाल, शिलोंग हो गया, ओडिशा, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सो पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ कवर्स। ठीक है। सिमिलरली है ना, फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में, नॉट इन द कैपिटल बट इन नैनीताल। ठीक है। सो ये सब बेसिक चीजें यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना। ये 1 जनवरी को तेलंगाना हाई कोर्ट नया बना, है ना, चूंकि सेपरेट हुआ था एक्चुअली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। ठीक है। खैर, सो लेट्स मूव ऑन। तो मैंने कुछ फेमस बता दी, जैसे यूनियन टेरिटरीज का, जैसे अंडमान निकोबार, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लक्षद्वीप है, सो लक्षद्वीप का केरला में, ये सब पता होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी नोइंग। Now, so today we are supposed to discuss Collegium System for the appointment of judges, है ना। 3 judges केस से आता है। So what exactly it is? Let us learn. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, so we have seen 4 judges cases in the past. ठीक है। 3 को पढ़ेंगे, फिर 4th वाले को थोड़ा देर से पढ़ेंगे। We'll discuss that also. So first judges case is 1981, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड जजेस केस इज 1993, इसी में कॉलेजियम सिस्टम का इनोवेशन हुआ इन इंडिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द थर्ड इज एक्चुअली अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। यू नो दिस, president can ask advice from the Supreme Court. Under which article? Under which article? Please tell me. These are asked in exams. कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं? सो द थर्ड जजेस केस इज एक्चुअली एन एडवाइस, है ना, इसलिए RE करके लिखते हैं ना, वो वही होता है, दैट इज RE, कैपिटल RE करके लिखा रहेगा। सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं ना, स्पेशल रेफरेंस। So which article is there? 143. Yes, Safinamani. Very good. So 143 talks about power of president to consult the Supreme Court, है ना। So ये वही वाला मामला है। ठीक है। This one is that case. Okay, third judges case है ना, जो KR नारायण प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एडवाइस मांगा था 1998 में। Okay. Now, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। We'll understand it. ठीक है। तो होता ये है, if you read article 124, it says the judge of a Supreme Court, है ना, Supreme Court of India consists of Chief Justice and 7 other judges, है ना। ओरिजिनली ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस था ओरिजिनली। सो टोटल 8 जजेस वेर सपोज्ड टू बी देयर। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब नाउ वी आर हैविंग CJI plus 33 means 34, means like parliament has amended the law and it has added more judges and all. खैर, ओके, नाउ अब इसमें ये था, तो उसमें जो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में मेंशन था, यहाँ पर एनजैक नहीं मेंशन था, ये तो अभी लिखा हुआ है ना। इसमें यह था कि एवरी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड, वारंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। तो वर्ड जो मेंशन था 124 क्लॉज 2 में, वो कंसल्टेशन विद CJI वर्ड मेंशन था। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता देता हूं। मतलब अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो कैसे अपॉइंट करोगे? तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 कहता यह है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक, ओरिजिनल जो था, इन कंसल्टेशन विद CJI। मतलब सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं। ठीक है। कंसल्टेशन का मतलब अब क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला किया कि कंसल्टेशन का मतलब क्या हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन? कंसल्टेशन होता है ना, मिलके बात करना, है ना, एडवाइस, हैव एन एडवाइस एंड टॉक एंड आस्क। The question है कि is this consultation what the CJI is giving it to the president, is it binding or not? मतलब ये सिर्फ एक राय है या बाइंडिंग एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना ही है? No, this is the question. ठीक है। So first judges में केस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि it's just an advice, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, फर्स्ट जजेस केस। ठीक है। The Supreme Court held that consultation in 124 means mere consultation of views and not concurrence of views। मतलब ये है कि ये सुप्रीम CJI की सिर्फ राय है और वो राय मान भी सकते नहीं भी मान सकते हैं, मे नॉट बी कंकरेंस। ठीक है। सो द फर्स्ट जजेस केस इज, लेट मी राइट इट विद रेड पेन। सो फर्स्ट, नहीं कोई और कलर से लिखता हूं, एक्वा कलर से लिखता हूं। फर्स्ट जजेस केस इज कंसल्टेशन इज नॉन बाइंडिंग। ठीक है। ये था 1981 SP गुप्ता केस। लेकिन सेकंड जजेस केस फिर क्या हुआ मामला? तो ये वाली इसी वेबसाइट से मैंने लिया है,
इस वेबसाइट से, ठीक है। देन सेकंड जजेस केस से सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993, इट सेज ये प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, नहीं पलट दिया, और कहा कि कंसल्टेशन मींस कंकरेंस ऑफ व्यूज एंड द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द दिस। और इसमें फर्दर ये भी कहा था कि द सीजीआई शुड कंसल्ट अलोंग विद टू अदर्स शुड बी कंसल्टेड, ठीक है, ये भी कहा था सेकंड जजेस केस में, इसमें नहीं मेंशन है। मतलब ये कि सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाइंडिंग है ये कंसल्टेशन, ठीक है, लेकिन सीजीआई अपने मन से एडवाइस नहीं देंगे, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस मिल करके एडवाइस देंगे, ये तीनों लोग मिलकर के प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, एंड दिस एडवाइस इज बाइंडिंग। दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन सेकंड जजेस केस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। उसके बाद थर्ड जजेस केस होता है जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है 143 आर्टिकल के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ ठीक है, बाइंडिंग पे रहेगा और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की राय ली जाएगी, ठीक है। तो द थर्ड जजेस केसेस एक्सपैंड्स द कॉलेजियम। तो थर्ड जजेस केस में क्या कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ 2 जजेस द सीजीआई सपोज टू कंसल्ट 4 जजेस, द सीजीआई प्लस 4 जजेस शुड बी देयर, ठीक है। इज इट क्लियर? सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। फर्स्ट जजेस केस में सीजीआई की जो एडवाइस है वो नॉन बाइंडिंग है टू प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कहा गया। सेकंड जजेस में कहा गया कि सीजीआई एडवाइस देंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 2 एससी जजेस जो कि सीनियर मोस्ट होंगे, इनकी एडवाइस होगी और ये बाइंडिंग होगी, तो हम टिक मार्क मतलब बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। फिर थर्ड जजेस केस में क्या कहा गया कि सीजीआई होंगे प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, यानी 5 मेंबर कॉलेजियम होगी और इनकी एडवाइस बाइंडिंग होगी, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीजें और आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? डू हैव एनी क्वेश्चन हियर टिल हियर? अगर है तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चन? ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। अब देखो जो करंट वाला है यही थर्ड जजेस केस चल रहा है। तो थर्ड जजेस केस में इफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट एससी जजेस। ये लोग मिलकर के अब रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब एक्चुअली ये रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के पास जाती है ना, एंड देन लॉ मिनिस्ट्री एंड आईबी की रिपोर्ट आने के बाद फाइनली देन इट इज गोस टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट। तो अगर पूछा जाए हु अपॉइंट्स द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉलेजियम की रिकमेंडेशन होती है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि 5 लोगों में 5 पीपल तो इनिशिएट करते हैं एक्शन सीजीआई, यानी कौन से नाम को प्रपोज करते हैं, सो नेम इज प्रपोज बाय सीजीआई। जब कॉलेजियम की मीटिंग होती है, 5 जजेस बैठते हैं तो सीजीआई नाम रखते हैं कि मेरी राय है कि ये आदमी सही है जज के लिए, और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जज मिलकर डिसाइड करते हैं। इसमें से अगर 2 लोगों ने वीटो लगा दिया सो दैट विल बी स्टॉप्ड, दैट रिकमेंडेशन वुड बी स्टॉप्ड, ठीक है। मतलब 5 लोगों में 5 जजेस आर देयर और सीजीआई ने कोई बात रखी, इन 4 में से कोई 2 जजेस ने मना कर दिया, इफ दे हैव सेड नो तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मतलब कॉलेजियम रिकमेंडेशन रुक जाएगा, ओके। एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग होता है, एक और चीज होता है, जैसे मान लो कि ये सीजीआई और प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस है ना, इन्होंने कुछ रिकमेंड किया, सो दे रिकमेंडेड समथिंग टू द लॉ मिनिस्ट्री, है ना, एंड देन लॉ मिनिस्ट्री पास ऑन करती है ना प्रेसिडेंट को। तो एक बार वन टाइम द लॉ मिनिस्ट्री कैन सेंड बैक, एक बार वापस नाम भेज सकती है, ओके, दैट प्लीज रिकंसिडर इट, देयर आर सम इश्यूज विद द नेम ऑफ द पर्सन, तो वन टाइम। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम दोबारा रीसेंड करे, इफ इट रीसेंड्स, लेकिन रीसेंड के लिए कंडीशन क्या चाहिए, रीसेंड के लिए कंडीशन ये चाहिए कि 5 का यूनानिमस कंसेंसस हो, यानी इवन 1 वीटो भी नहीं चलेगा। फर्स्ट केस में अगर 2 आदमी वीटो कर देंगे, 2 पीपल से नो, मींस इट इज स्टॉप्ड, बट इफ द लॉ मिनिस्ट्री हैज सेंट इट बैक एंड द कॉलेजियम अगेन सेंड्स इट बैक, दोबारा जब भेज रहे रीसेंड कर रहे हैं, सो इन दैट केस ऑल द जजेस शुड एग्री कि नहीं इनका नाम फिर से जाना चाहिए। सो इफ द कॉलेजियम रीसेंड्स इट, द लॉ मिनिस्ट्री इज सपोज्ड टू फाइनली एक्सेप्ट, मतलब फिर दोबारा भेज नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज व्हाट एक्चुअली दीस आर रिटन इन द थर्ड जजेस केस। आई होप इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? यस और नो? एंड बहुत डिटेल में पढ़ाया है, यू विल नॉट फाइंड इट इन न्यूज़पेपर, मे नॉट बी इन बुक,
किसी किताब में भी आपको इतना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, शायद अखबार एडिटोरियल में भी नहीं समझ में आया इतना साफ साफ, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल एंड डोसेड वे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हो। ओके, सो एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एक बार लाइक बटन प्रेस कर देना। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया। अगर किसी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है तो क्या होता है, जो थर्ड जजेस केस के हिसाब से ना, तो हाई कोर्ट के अगर किसी जज को अपॉइंट करना है, नेम एंड ईयर ऑफ थर्ड जजेस केस, प्रियांशी ये नाम जो है मैं दिखाता हूं, दिस इज द नेम। इन रिसीव द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैसे आ रही लिखते हैं, स्पेशल रेफरेंस 1 1998, ये वही अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, दैट इज इट। तो थर्ड जजेस केस को जजमेंट नहीं माना जाता बल्कि एक ओपिनियन माना जाता है जिसको फॉलो किया जा रहा है ना। हाँ ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट। तो हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सो हाई कोर्ट के जज का मान लीजिए कोई लॉयर है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये दिस इज तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है, तो कोई लॉयर इज प्रैक्टिसिंग इन दिस हाई कोर्ट और इट फुलफिल्स ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई विल डिस्कस द एलिजिबिलिटी, जस्ट वेट। तो इस हाई कोर्ट में देयर विल बी अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, सीजे ऑफ अ हाई कोर्ट, प्लस 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। इन 3 मेंबर कॉलेजियम होती है, ओके। ये 3 मेंबर कॉलेजियम को अगर लगता है, पहले अगर चीफ जस्टिस को लगता है हाई कोर्ट को कि हाँ ये बंदा सही है, लेट्स से देयर इज अ पर्सन एक्स, ही इज अ लॉयर एंड ही इज एक्चुअली एलिजिबल फॉर अ हाई कोर्ट जज, है ना, जजशिप, तो ये बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन में राय लेकर के इनका नाम जो है भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को, ठीक है, ओके, ठीक है। यस अगस्त्य, आई एम कमिंग टू दैट, जस्ट वेट, ठीक है। तो इनका नाम भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को, और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम चूंकि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है तो सिर्फ 3 जजेस की कॉलेजियम होगी। 3 जजेस की कॉलेजियम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, और इन तीनों में अगर कोई एक आदमी वीटो कर दे, इफ देयर इज वन वीटो इट इज वीटो, ठीक है, ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं। फिर ये लोग तीनों जजेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, ये फिर रिकमेंड करेंगे लॉ मिनिस्ट्री को एंड देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट एंड ऑल, ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरह से हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो तो डायरेक्ट यहां से शुरू होता है, ठीक है, फिर ये वाली बात नहीं होती, बिकॉज चीफ जस्टिस से ही थोड़ी पूछा जाएगा, ये कुछ है ना, तो दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स, है ना, इज इट क्लियर? द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज हैपेंस इन दिस वे, एंड अगर किसी स्टेट का चीफ जस्टिस बनाना हो तो फिर यहीं से शुरू होता है। ये 3 जजेस जो है, 3 हाई कोर्ट के कॉलेजियम के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठते हैं, सीजीआई एंड 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड दे डिसाइड। आई होप इट्स क्लियर, है ना? हाँ ठीक है, हाँ ये सब हो गया। नाउ एक चीज और होती है, वो होता है, ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर, इसमें कोई इशू नहीं ना है, आई होप इट इज क्लियर, है ना, इसमें और ज्यादा जानना नहीं, ठीक है, दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ। फिर मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर इसमें जाओगे तो आर्टिकल 217 में इसके नीचे जाओगे, विल डिस्कस इट, कहीं पे मैंने लगाया होगा, हाँ यहाँ पे 124 इज एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी ऑफ अ हाई सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल ये है कि आप 5 ईयर, है ना, यहाँ पे लिखा है ऊपर में, 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हो, चाहे एक हाई कोर्ट या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, या 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या इवन सुप्रीम कोर्ट में भी रहे तो भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लॉ रहे हैं 10 साल तक और डायरेक्टली वेर मेड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा वाला, हालांकि ये वाला यूज नहीं किया गया अभी तक, इट हैज नॉट बीन यूज्ड येट, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इफ यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब होता है किसी के पास बहुत अच्छी लॉ की नॉलेज हो, जैसे लॉ प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, समथिंग लाइक दैट, बट दिस हैज नॉट बीन यूज्ड टिल नाउ। सिमिलरली हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 217 सेज, है ना, कि 10 साल जुडिशियल ऑफिस रहो, जुडिशियल ऑफिस मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, सीजीएम, लोअर जुडिशरी में काम किए हो, है ना, एज अ जज, और एटलीस्ट 10 इयर्स एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के तब। सो दीज आर द 2 कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, ओके। नाउ अब हम आपको बताते हैं, ये तो हो गया। अब एक चीज और होता है, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, एक चीज ये भी होता है,
मान लीजिए किसी को दिल्ली हाई कोर्ट से कहीं यहाँ ट्रांसफर करा देंगे, मद्रास हाई कोर्ट, ये सब होता रहता है ना, विच इज डन अंडर आर्टिकल 222। तो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज में कॉलेजियम जो होती है वो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है। यानी ये वाली जो कॉलेजियम, देखो मैं क्लियर कर देता हूं, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है तो कॉलेजियम कौन सी होगी, जो एससी कॉलेजियम होगी, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम होगी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट एससी जज होंगे, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज हो रहा है, सो देयर विल बी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 एससी जजेस होंगे, लेकिन इनके लिए एडवाइस कहां से आएगी, इनके पास एडवाइस आएगी हाई कोर्ट के कॉलेजियम से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और 2 हाई कोर्ट जजेस सीनियर मोस्ट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, इन दैट केस वी आर हैविंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 एससी जजेस, ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे यहां पर होता है ये दोनों सेम होता है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के लिए सेम कॉलेजियम होती है, और अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस के लिए छोटी होती है कॉलेजियम, सीजीआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस। इज इट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई एम श्योर यू may not find it any book clearly or in any newspaper, तो मैंने और सिंपल अंदाज में बता दी। आई थिंक इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन? सो लेट अस मूव ऑन, है ना। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड एलिजिबिलिटी। अब होता यह है कि थर्ड जजेस केस के बाद एक अमेंडमेंट लाया जाता है, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सो व्हिच वाज ब्रॉट बाय व्हिच अमेंडमेंट, प्लीज टेल मी, कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था? And first 99th, one and third, one and 9th. What is the right answer? This is important. 99th amendment से लाया गया था. So this concept of NJAC was brought, although it was later on struck down by Supreme Court. लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। So 99th amendment में हुआ ये था, which was brought by the Parliament of India in 2014, ठीक है। उसमें ये था कि सीजीआई होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन, और इस 2 इमिनेंट पर्सन को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी कंप्राइजिंग ऑफ दिस। देखो आप बताता हूं, तो अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो थर्ड जजेस केस के हिसाब से क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट एससी जजेस होते हैं, इनकी कॉलेजियम होती है और ये रिकमेंड करती है नाम लॉ मिनिस्ट्री को, एंड देन टू द प्रेसिडेंट, इट गोज लाइक दिस, है ना। ये अभी थर्ड जजेस केस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एनजैक में क्या किया गया कि नहीं, जो कॉलेजियम होगी तो है ना, द कमीशन, इसको एनजैक कहा गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा गया, कॉलेजियम वर्ड नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया सीजीआई वुड बी देयर, देन 2 एससी जजेस, 2 एससी सीनियर मोस्ट जजेस, है ना, जो बाकी था। तो कितने लोग हो गए, 2 1 3, फिर एक लॉ मिनिस्टर होंगे 4, फिर 2 इमिनेंट पर्सन। लेकिन इसको डिफाइन क्लियरली नहीं किया गया था कि इमिनेंट पर्सन का मतलब क्या हुआ। तो 4 तो 6 हो गया, 1 2 1 3 4 तो 6, 6 पीपल। लेकिन ये इमिनेंट पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी, और इस कमिटी में फिर से लोग होंगे, पीएम, सीजीआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो ऑपोजिशन पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है वो होंगे, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इज इट क्लियर एनजैक? लेकिन इसको दिस वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाले जजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ जजेस केस, फेमसली फोर्थ जजेस केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, इसको भी नाम वही है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो सेकंड जजेस केस का नाम है, ऑलमोस्ट सेम वही नाम है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट 4:1 इन अक्टूबर 2015। तो अगले साल उसको स्ट्राइक डाउन कर दिएगा कि इट इज एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाई? बिकॉज इट एक्चुअली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो मेन चीज ये कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है,
violates independence of judiciary. Can you please tell me, यहां से देख के बता सकते हो कि कहां पर इशू है? So what the Supreme Court said independence of judiciary के अगेंस्ट है और स्ट्राइक डाउन कर दिया गया. क्यों? बिकॉज जुडिशरी का जो मेन प्रिंसिपल है, हाँ, लॉ मिनिस्टर अगेंस्ट है. वेरी गुड, राइट. सो लॉ मिनिस्टर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं. आपने देखो फलाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हैव यू हर्ड दिस? यस, XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सारे केसेस, मोर देन आई थिंक 70-80% केसेस तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही के अगेंस्ट होता है, मतलब एक पार्टी होती. सो वन थिंग इज दैट. दूसरी बात है कि अगर आप यहां भी देखोगे तो यहां पर भी एक तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है दो जगह. तो सो परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया, मतलब जजेस को, एंड दे सेड कि नो, दिस इज अ पॉलिटिकल डायरेक्ट इंटरफेरेंस, मतलब ये इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है. दैट देयर इज नो नीड फॉर, मतलब दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक पॉलिटिशियंस डिसाइडिंग हु शुड बी द जजेस एंड ऑल. तो खैर इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया. इसीलिए जो थर्ड जजेस केसेस में कहा गया द कॉलेजियम, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो टुडे आल्सो whatever was said in the third judges case, जो मैंने अभी को एक्सप्लेन किया, so this exists even today. ठीक है? So that is what you should be knowing. So is it clear? कोई क्वेश्चन है? मतलब मैंने I have tried my best to explain things, the important things associated with that. Still, if you have any question, you can ask. आज 8 बजे मिलूंगा. I'll be meeting you today at 8 p.m. Those who are preparing for MHCT, AMU या जामिया या इस तरह का कोई भी और एग्जाम है जो इस साल होने जा रहा है लॉ एंट्रेंस का. So for that, if you are going to attempt, please watch my class Sunday 8 p.m. आज today will be meeting you. So my क्योंकि people were demanding it, that is why I've said. तो मैं धीरे धीरे करके सब्जेक्ट वाइज मैं काफी कुछ कवर कराऊंगा एवरी संडे 8 p.m. पे. ठीक है? Keep on watching that. That would be very helpful for these 3 exams. Okay. So we are ending this session here. Thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button. Share this video. Thanks for watching. Have a nice day.